द क्वेश्चन, कौन बताएगा कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखते हैं सबसे पहले कौन मार्क्स लेके जाते हैं, इसके नंबर मिलेंगे। हाँ जी, इस टेबल से क्या उम्मीद है आपकी आज की वर्कशॉप से? इधर उधर भी देखना है। हाँ जी, क्या उम्मीद है आपकी? सबसे पहले जो बोला वो बोलिए। सर, हम जहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं, बहुत एक्साइटमेंट है हमारे मन में कि हम जब अच्छा सीखेंगे तो बच्चों को और ही अच्छा बनाएंगे। तो इंडिया के बच्चों की डेवलपमेंट को लीजिए, तो इंडिया की डेवलपमेंट है। हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। बहुत कुछ जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, अच्छा बोला मैम ने, लेकिन ये डिफाइंड टर्म नहीं है। आपने साइंस का चैप्टर पढ़ा दिया और आप बोलो बच्चों को कि जो भी आपने सीखा है मुझे बता दो, और बहुत कुछ बता दो, तो बच्चों को डायरेक्शन नहीं मिलेगी कि क्या बताना है। तो आज हम ये सीखेंगे कि साइंस की मोटिवेशन क्या है, स्टोरी फॉर्म में साइंस को कैसे पढ़ाना है, एक्टिविटी फॉर्म में साइंस को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, सो आई बिगिन विद वन साइंटिफिक नरेशन, ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड what is in store for you. In Mahabharata there is one story. Arjuna's son was killed by Jayadratha. Jarasandha or Jayadratha, one of the persons. And then Arjuna vowed to kill him before the sunset. Otherwise Arjuna will kill himself, will sit on the funeral pyre. And what happened? Suddenly, all the warriors were engaged in war, fearsome battle, and the sun was set. Now, Krishna reminded Arjuna of his vow that okay, now everything is over. And that demon, he came out laughing that okay, you could not fulfill your wish, so now you have to kill yourself. And then he was walking toward the funeral pyre. Krishna reminded him of his Gandhi, his Dhanushban. इसको लेके जाओ, इसका क्या करोगे? देखो पीछे से कौन इसका, nobody can even lift it. So Arjuna को बोला उन्होंने, तो Arjuna took it. And then suddenly there was sun in the sky. Sunset के बाद sun कैसे हो सकता है? अब this story, now even if you take it as a story, ये कहानी थी और महाभारत कभी नहीं हुई थी, so kudos to the writer who wrote it, because scientifically we can find out around 2987 BC. Now this is the recorded evidence. 2987 या 2937 BC, towards the evening, around 3 or 4 p.m. there was total solar eclipse in Kurukshetra. So what will happen in total solar eclipse? Complete dark. So there will be one phase in which sun is about to set, because nobody is looking at the sun. They are looking at the shadows. They are looking at the surroundings. And suddenly, in battle, they all are glued to the enemy, not to the sun. And suddenly they realize, okay, it is evening time, and now it is pitch dark. The sun has set. And this total solar eclipse takes 2 minutes or 3 minutes time to come out, that diamond ring and all. And even then it is dark, you can't make out. Suppose Jarasandha is celebrating, you won't make out that sun is coming out. Alright, so scientifically, it is proved that in 2987 BC, towards the evening time, on the Kurukshetra horizon or sky, there was total solar eclipse. Now, if some writer has incorporated this celestial event in the story, you will definitely believe that nobody in today's era is writing such stories. Yes or no? कोई ऐसी कहानी लिख रहे जिसमें इतना बड़ा सेलेस्टियल इवेंट उस स्टोरी के बीच में एक
incorporate कर लिया. And to an extent that after 5,000 years, the scientific fraternity is investigating whether did that celestial event happen or not. So this is the power of scientific research and evidence. Okay, now you all have heard of Newton. न्यूटन के बारे में सुना है? क्या किया था न्यूटन ने? अब ये तो बता ही सकते सारे. न्यूटन किसके लिए जाना जाता है? लॉज ऑफ मोशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी. तो ये ग्रेविटी क्या होती है? अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है? और क्वेश्चन में जैसे बच्चों को आपने क्या पूछना है, मार्क करो. So the question is, now I think science teachers who teach class 9 or 10 will answer this question. One deer dropped from the cliff, which is 20 meters high. To your support, I will make this also. 20 meters, bear is here, fell down, took 2 seconds. So bear dropped from cliff which is 20 meters high, dropped on the ground and touched the ground in 2 seconds. समझ आ गया? Now the question is, this is the situation. Students have read the formulas. So what are the formulas? I'm going to write that as well, because those who are not science teacher will understand this easy. U is the initial velocity. The bear is at rest on the top of cliff. तो U तो क्या है? 0. तो ये तो गया. S कितना है? Total height. That's 20 is equal to half a t square. T is 2 seconds. बस इतना ही बताऊंगा. Okay. Now the question is, what is color of bear? Remember, there is one word, absurdity. But there is one question, creativity. Is this absurd question or a creative question? Those who know the answer or those who have heard of the story, please do not answer. Let others answer this. Yes. What is the color of bear? अब bear के कितने कलर होते हैं? मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका बना सकता हूँ? बोलो, कैन आई मेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? आपने ब्लैक बियर सुना होगा, व्हाइट बियर सुना होगा, ब्राउन बियर सुना होगा, और फिर एक आपको पता ही, आपको टीचर्स हो नन ऑफ दीस तक. हम इस पे भी आएंगे क्योंकि आप लोग यही करते आए हो. बट यहाँ पे इज इट अब्सर्ड क्वेश्चन? बोलो. None of these, brown, black and white. अच्छा, ओके, इसमें क्या मिसिंग है? 20 is equal to half, a is there missing and t is 2 seconds. So 2 to the 4. So ये कट गया, a कितना आ गया? 10. What is a? Acceleration due to gravity. So this, इसका आंसर कितना आया? 10 meter per second square. Acceleration due to gravity. Gravity कितनी है? अर्थ की gravity 9.8 और ये क्या है? 10. अर्थ की gravity कहाँ पे ज्यादा होती है? पोल्स पे. पोल्स पे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है. अब जो ज्यादा ग्रेविटी आंसर आई है, तो इसका मतलब है ये क्लिफ कहाँ पर है? पोल्स पे. पोल्स पे ब्राउन और ब्लैक बेयर तो पॉसिबल ही नहीं है. तो कौन सा मिलेगा? आंसर क्या है? ये आईआईटी का क्वेश्चन है, अब्सर्ड नहीं है. ठीक है जी. और ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, नन ऑफ दिस. ठीक है जी. अब एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर विल स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. अब ये इतना इजी क्वेश्चन है कि हर किसी को आता है. सो समटाइम the answer is very easy, but when you ask question,
इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक क्वेश्चन है, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर, मैथ्स का क्वेश्चन है और आंसर 48 है, ठीक है जी। आपको प्रिंसिपल ने बोला या एचओडी ने बोला कि एमसीक्यू पेपर बनाना है। अब इस क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन, एब्सर्ड नहीं है, उसका आंसर 48 है। आप 48 को ABCD में कहीं भी रख दोगे? यस और नो? से लाउडली। अच्छा, अब जो बाकी चॉइसेस हैं वो क्या बनाओगे आप अदर देन 48? एग्जांपल 40 और 47.7 और चलो ये लिख भी लेते हैं ना, बड़े क्रिएटिव आंसर आ रहे हैं। और 42.2। मैथ्स टीचर हो आप? नॉन मैथ्स टीचर भी बोलो कुछ लास्ट में, लास्ट बेंच सरदार जी प्लीज कुछ बोलो। 44 पॉइंट, ये पॉइंट लगाना मतलब बच्चे को पागल करना है। मैं देख रहा हूँ मेंटालिटी आपकी, मतलब पॉइंट लगा दो, बच्चा पॉइंट क्यों आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, और एक नंबर चीज तो कर ही दो आप, है ना, पीछा छोड़ाओ, एमसीक्यू बनाना है। अच्छा, राइट आंसर चुन लेना है 48। अब मुझे एक बात बताओ, जब बच्चा सॉल्व करेगा, मान लो 4 स्टेप है, ठीक है, 4 स्टेप्स है, फर्स्ट 2 स्टेप्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और थर्ड स्टेप गलत हो गया कैलकुलेशन में कहीं, फोर्थ स्टेप के बाद जो आंसर आया वो इनमें से कोई भी नहीं है। कैसे हो सकता है? क्योंकि राइट आंसर तो उसको आता नहीं, और उसकी गलत कैलकुलेशन है, उससे जो आंसर आया वो तो यहाँ पे है नहीं। अब बेचारा कंफ्यूज, अब वो कहीं पे भी ABCD में अक्कड़ पकड़ मम्मा वो करके कर देगा। यस और नो? आपको क्या मिला इससे? बच्चे को परेशान करके कुछ भी नहीं। आपको कोई पता नहीं है कि बच्चे को पहला स्टेप आता था या दूसरा आता था या तीसरा आता था, आपको कोई ज्ञान नहीं। यस और नो? ठीक है जी। तो अब जो एलिमेंट्री साइंस में या मैथमेटिक्स में हमारे को ये देखना है कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन डायग्नोस्टिक होना चाहिए। उसका एक बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। 3rd क्लास का मैथमेटिक्स है, सबको समझ आएगा, ठीक है। अब 3rd क्लास में आपको पता है मैथमेटिक्स की नोटबुक बड़ी खास तरह की होती है। कैसे होती है? स्क्वायर वाली। तो स्क्वायर वाली नोटबुक में एक पेज ऐसे बना हुआ है और सिंपल क्वेश्चन है 12 + 8। अब इसका ABCD, तो 12 + 8 क्या होता है? 20। वो तो एक चॉइस आप दे दें, नन ऑफ दीज तो देना नहीं है, ये तो मैंने मना कर दिया। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। अब बाकी चॉइसेस आपने बनानी है, ठीक है। तो आपने एज ए टीचर ये सोचना है कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती करेंगे, क्योंकि बच्चे रोज स्कूल नहीं आते। हो सकता है जिस दिन आपने कैरी ओवर करवाया हो उस दिन 5 बच्चे ना आए हैं। आपको रैंडम आइडिया है कि मेरी क्लास में 35 बच्चे हैं, उस दिन तो 7-8 बच्चे नहीं आए थे क्योंकि बारिश हो रही थी और मैंने ये करवा दिया था कैरी ओवर। तो 7-8 बच्चों का मिस हुआ है, शायद उनकी मम्मी ने करा दिया होगा, 3rd क्लास में मम्मी पढ़ा रही थी, पर मैंने नहीं करवाया। यू हैव दैट आइडिया, बट यू फॉरगॉटन कौन 6-7 बच्चे हैं, ठीक है। फिर प्लेस वैल्यू, यूनिट वैल्यू और टेंस वैल्यू वो भी मैंने करवाई, क्योंकि बच्चों को बताना पड़ेगा आपको कि कैसे लिखना है। अब जो बाकी चॉइसेस है ना वो डायग्नोस्टिक करानी है। ध्यान से देखें सारे। पहला जो एक बच्चा है उसने 12 यहाँ लिखा और 8 उसने यहाँ लिखा, ये वो बच्चा है जिसने क्लास लगाई थी, लेकिन कैरी ओवर वाला उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। उसने क्या किया? age to 10. Priyanka ma'am is also there. Man's class now. Welcome now. So 8 and 2 10 कर दिया उसने, बट कैरी ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, पूरा 10 लिख दिया। और फिर सोचा कि ऊपर 1 था नीचे 1 था, आ तो गया।
10 आंसर। अब ये कॉन्सेप्ट गलत उसको समझ आया, तो आपके टूल में ये होना चाहिए, एक आंसर आपका 10 होना चाहिए, ताकि आपको 10 आंसर देखने के बाद एकदम से पता चल जाए कि ये बच्चा समीर है, समीर को कॉन्सेप्ट नहीं पता, राइट। अच्छा, एक और बच्चा है, उसने ये 10 लिखा, उसने बोला ये भी नहीं जाने दूंगा, उसने 110 कर दिया, तो 110 भी आपकी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन डायग्नोस्टिक बन रहे हैं। एक और बच्चा है, उसने पहली क्लास ही नहीं लगाई थी, लेकिन उसने दूसरी तीसरी चौथी क्लास लगाई, उसको प्लस का पता है ये ऐड कैसे करते हैं, पर उसको 12 और 8 की पोजीशन का पता नहीं था। 12 लिखने के बाद 8 उसने यहाँ लिख दिया, अब उसको ऐड करना तो आता है, तो यहाँ लिखा 9, यहाँ लिखा 92। ये क्वेश्चन जो बना, ये डायग्नोस्टिक क्वेश्चन है। इसमें टीचर को आंसर चेक करने के बाद एकदम से पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं जिनको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है जी। तो अब जब टीचर पूछे कि अच्छा 48 आंसर है, तो बाकी 47.6, 41.111 ऐसे एब्सर्ड चॉइसेस नहीं दीजिए। आप देते हैं ना, अब मुकर गए, अरे अभी तो आपने बोला वो देखो परेशान कर दिया। नेम क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। अब देखो मुझे कितने नाम याद रहते हैं, आपने मेरा टेस्ट लेना है, मुझे प्रियंका मैम का नाम याद है, सर का नाम भूल गया मुझे, सुरजीत सिंह। देखो ये आपकी आज उसमें मेन वो अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है कि आपको कितने लोगों के नाम याद रहते हैं। अब मैं क्लास टीचर हूँ तो मुझे अपने सारे बच्चों का नाम पता है, लेकिन जब मैं दूसरी क्लास में जाता हूँ मुझे बहुत टाइम लगता है। ऐसा होता है ना आपके साथ। व्हेन आई वाज क्लास टीचर लॉन्ग बैक, तब का मैं बता रहा हूँ, मैं क्लास टीचर नहीं हूँ। और जो बच्चे धुंधर है पूरे, एक से एक कांड करके आते हैं, उनके नाम मुझे याद है। जो मेरे ऑफिस में आते हैं उनमें क्लास 4 के भी होते हैं। अब मतलब जो गुंडागर्दी हम 8, 9 में देखते थे बच्चों की, अब वो नीचे आ चुकी है कट से। हाँ, वो लोअर क्लासेस में शुरू हो गए। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो कोई गैंग नहीं है। हमारे 3rd क्लास के बच्चों ने एक बच्चे को पीटे हुई क्यों? हाँ, और बच्चों से पूछा, कहते हैं कि वो उसको बोल रहे कि तेरे को इसलिए पीट रहे क्योंकि तेरी गैंग नहीं है। उसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, और वो लंबा है हमसे, तो 5-6 लोगों ने उसको घेर के पीट दिया। ठीक है, वो मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे कैसे डील करना है बच्चों के साथ। मुझे लग रहा है कि एज ए प्रिंसिपल आई नीड टू अपडेट माय सेल्फ एवरी डे। दे कमिंग, दे आर थ्रोइंग न्यू चैलेंज एवरी डे। तो अब साइंस पढ़ाना तो बहुत डिफरेंट बात है। सो इसमें सारे लोगों को इसलिए बिठाया गया क्योंकि जब साइंस टीचर के पास बच्चे जब जाएं तो उनको सारी चीज़ों के एस्पेक्ट और सारी स्ट्रेंथ्स ऑफ अदर सब्जेक्ट उसके दिमाग में हो, इसलिए वो साइंस को बड़ी आसानी से ले पाएगा। आपको एक और बात बताऊं, जितने भी एंशिएंट फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स हुए हैं, वो बड़े अच्छे राइटर्स थे, वो बड़े अच्छे फिलोसोफर्स थे। वो तब लेबोरेटरीज नहीं होती थी, वो चेयर पे बैठ के कंटेम्पलेशन करके एक्सपेरिमेंट करते थे। ग्रीक फिलोसोफर्स, प्लेटो, डेकार्टेस, इनके नाम पे मैथमेटिकल थियरीज हैं। तो ये इनको आइडेंटिफिकेशन थी। लियोनार्डो दा विंची क्या थे? वो स्कल्पचरिस्ट, he was artist, he was helicopter, he designed helicopter, so he was aeronautical expert as well. He was painter, he was scientist, he was mathematician, इतना कुछ थे वो मल्टी टैलेंटेड। सो अब हमारे बच्चे ऐसा नहीं है, हम बोले साइंस अच्छा, ये सिर्फ साइंस वालों का काम है, बट CBSE has come with art integration. That's why in STEM trainings they want all the subject teachers to attend. That's why you all are there. All right. So these are the two main things which we will focus today. Let's begin with